Page 98. The only way to advance. This morning, when I saw the mother, I got some contact with her consciousness. I was very impressed by her saying that she thought I am sincerely doing sadhana, and by her giving me the flower called supramental future. Both these things gave me hope, especially the latter, for I have been wondering whether I would realize up to the supramental consciousness. These days, many forces have been pulling me in different directions. In this way, I don't arrive at the truth or at the organization of my being. Now and then I get experiences, but I also get confusion and nothing is settled. Sometimes the very law of life seems to be fight and disagreement. Today I felt a quiet peace in the vital and the mother's consciousness. For a long time I remained quiet after seeing the mother. I am getting many experiences, but the consciousness gets diverted by suggestions and by activity. ये तो ठीक है कि सुबह जब मैंने माँ को देखा तो उनकी चेतना के साथ मुझे कुछ संपर्क प्राप्त हुआ। माँ ने मुझे ये कहा कि उन शी थॉट उन्हें ऐसा लगता है कि आई एम सिंसियरली डूइंग साधना, कि मैं सिंसियरली साधना कर रहा हूँ, और मैं इस चीज से इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने सुप्रामेंटल फ्यूचर नाम का जो फूल है वो मेरे को दिया। ये दोनों ही चीजें, विशेषकर उनका सुप्रामेंटल फ्यूचर फूल मेरे को दिए जाना, मुझे आशा प्रदान करी इस चीज ने, क्योंकि मुझे ये मन में था कि मैं सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस रियलाइज करूंगा, तो उनका मुझे ये दिए जाना, ये एक आशा का मेरे लिए एक सूचक था। इन दिनों अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मुझे अनेकों फोर्सेस, शक्तियां जो हैं वो खींच रही हैं। इन दिस वे आई डोंट अराइव एट द ट्रूथ और एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई बीइंग। और क्योंकि वो अलग अलग तरीके से रास्ते में खींच रही हैं, तो मैं सत्य पे नहीं आ पाता या अपने बीइंग के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं आ पाता। नाउ एंड देन यदा कदा मुझे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, बट आई ऑल्सो गेट कंफ्यूजन, पर कंफ्यूजन भी आ जाता है। अभी कोई चीज स्थायी स्थिर नहीं है। समटाइम्स द वेरी लॉ ऑफ लाइफ सीम्स, और ऐसे लगता है कि जीवन का नियम ही है फाइट और डिसएग्रीमेंट, जिसमें सारी चीजें एक दूसरे से तालमेल में नहीं है। आज मैंने क्वाइट, बिल्कुल शांत पीस को जो है, नीरवता को अपने प्राण में महसूस किया और माँ की चेतना को महसूस किया। फॉर ए लॉन्ग टाइम आई रिमेन्ड क्वाइट आफ्टर सीइंग द मदर। माँ को देखने के बाद लंबे समय में शांति में रहा। आई एम गेटिंग मैनी एक्सपीरियंसेस, बट द कॉन्शियसनेस गेट्स डाइवर्टेड बाय सजेशंस एंड बाय एक्टिविटी। तो माँ, ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं, ए क्वाइट माइंड मेक्स कॉन्शियसनेस ईजियर। एक नीरव मन जो है वो चेतना को ईजियर, easy. If you keep a quiet mind and a constant contact with myself and the mother and the true light and force, then things will become easy and straight. It is the only way to get to the realization. यही एकमात्र तरीका है कि तुमको रियलाइजेशन मिल सकती है। It is a mistake to think that this method will not lead you to the supramental realization. It is the only way to advance towards the supramental change.
It is because you become doubtful and begin to follow after other ways and other lower experiences that you get again confused and full of incertitudes. Keep to one way, the way shown to you by me. It is by following this way that you can reach the wideness you want. If you run about on many ways, that will bring not wideness but confusion. Here in the lower nature, there are many things, but they are in a state of disharmony. So to follow them all together means disharmony, confusion, want of organization, fight. In the higher supramental nature, there is a greater wideness and much more is there than in the lower nature. But all is harmony, organization, peace. Follow therefore the one way that leads to the higher supramental nature. Do not be impatient, because full knowledge does not come to you at once. In quietude of mind, keep the contact, let the true light and force work, and with time all knowledge will come and the truth will grow in you. तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? क्वाइट माइंड मेक्स कॉन्शियसनेस ईजियर. ईजियर मतलब क्या मतलब हुआ इसका देविका जी? A quiet mind makes consciousness easier. ये इसका मीनिंग तो नहीं वैसे पता है, बट मीनिंग नहीं पता. कॉन्शियसनेस इजियर तो मतलब वो चेतना आसान हो जाएगी, या आप सचेतन आसानी से सचेतन हो जाएंगे, ये हो सकता है. वो तो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस हो गया, फिर बाद में कॉन्शियसनेस मतलब तो चेतना. चेतना आसान हो गई. हाँ मतलब क्वाइट माइंड है आपका. अवेयरनेस आ जाती है ना, चेतना से ही अवेयरनेस आई. इजियर के मतलब देखिए, जिसको लोग फीवरिश एक्टिविटी कहते हैं, वास्तव में वो कर्म है नहीं. और जब आपको बिल्कुल क्लैरिटी है ना, और वो क्लैरिटी किस चीज से आती है? वन पॉइंटेडनेस से आती है. ये कह रहे हैं यार तू इधर उधर क्यों कर रहा है? एक तरीका तेरे को मैंने जब बता दिया. जैसे ही व्यक्ति इस पोइज के अंदर आता है, वो कर्म तो बहुत जबरदस्त कर सकता है, बहुत एक्टिविटी कर सकता है. जीवन जो है वो इजियर, मतलब ये नहीं इजियर का मतलब कि वो बैठ के शांति से तामसिकता के अंदर है, खाना पीना कर रहा है, ये नहीं. इजियर मतलब गुरु ने बता दिया और आप कर रहे हो. ऐसी कौन सी बात है जो गुरु को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे या वो चीज नहीं कर पा रहे? ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि तू परेशान रहेगा जब तक कि जो तेरे को मार्ग बता दिया उसको वन वे उसको ही फॉलो कर, इधर उधर. और लोगों को क्या लगता है कि इससे वाइडनेस नहीं आ रही. ये एक्चुअल में तो ये अनुभव, अगर आप इस माहौल में हो तो बाहरी जो आपको कई बार ये लगता है यार ये एक्टिविटी तो, ये पॉलिटिशियन तो कितनी एक्टिविटी करता है, कितनी चीज इसको ध्यान रखनी है, इतनी शार्प मेमोरी है, इतना ये है. एक्चुअल में यदि आप उसकी चेतना के अंदर जाके देखो, उसको क्लैरिटी हो ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती. चेतना इजियर नहीं होती. ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है. चेतना में ईज तो माँ के टच से आती है. ये सारी बातें आप ये देखो कैसा जगत है ये इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि ये सिद्ध हो गए, ये रियलाइज्ड, ये बातें ही नहीं है ये. आपकी चेतना, अब ये सारी चीज तो सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करती है. चेतना आपकी जो है इजियर, पर कौन सी चीज है जो नहीं करने देती, आदमी के भार बनाए रखती है, वजन बनाए रखती है? ये तो तब की बात है आदमी कितना सिंसियर है. माँ ने उसको सुपरामेंटल फ्यूचर का फूल भी दिया है, वो अपनी साधना के बारे में सीरियस है. आप ये देखिए, और उसको लगा अरे आज तो होप मेरे अंदर आया, क्योंकि माँ ने ये कह दिया भैया तू तू साधना कर रहा है, चिंता मत कर. तो ये इनसिंसियर आदमी नहीं है, पर इसका अपने आप से सरोकार होने के कारण इसने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर ली, बहुत सारी अननेसेसरी
जटिलताएं इसने पैदा कर ली, और ये हर व्यक्ति करता है। ये ऐसी डीप चीज है जो साधना की एक बाद की अवस्था के अंदर आपको इसका सेंस आता है, अरे ये वजन चल रहा है, ये बोझा चल रहा है। नहीं तो व्यक्ति और प्रयास करता है, और उसकी चेतना उसको क्या बताएगी, तू इंटेंस है, तू इंटेंसिटी मेंटेन कर रहा है, तू इंटेंसिटी नहीं मेंटेन कर रहा। श्री अरबिंदो जिन गहनताओं को लेके आ रहे हैं, पर उसके बावजूद लाइट एंड लाफ्टर, श्री अरबिंदो का मतलब कोई ये थोड़ी बोझा हो गया उनके कि मैंने रिकॉर्ड ऑफ योग भी लिख दी, मेरे को ये सारी त्रिकाल दृष्टि है, ये सब है, तो वजन हो गया उनके। हमारे तो छोटी छोटी चीज में एटीट्यूड हो जाता है, वजन देखो हमारा कितना हो जाता है। आदमी ये वजन नहीं रख पाए तो वो तो, नहीं तो उसकी प्राइस टैग है, छोटी छोटी चीज के अंदर भारी बन जाता है। कॉन्शियसनेस इजियर कब होगी, ये एक्चुअल में ये कैसे समझाएं ये, एक एक को ऐसे खोलते चलते हैं, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं। वो वहां साधना कर रहा है तब की बात है ये, और ये नहीं कि उसमें कोई ये दोष है। ये तो चीजें हैं ही, प्रकृति की ये गांठें हैं। हाँ अनिल जी, क्या बोल रहे हो आप? हाँ नहीं, इसको जैसे वो गहराई वाली जो बात है, वैसे वो समुद्र का जो एग्जाम्पल है, सरफेस पे चल रहा है और उसके नीचे जो ये शांत है, तो वो मतलब भटकन जो है वो नहीं होती। मतलब एक जिसको कहते हैं कि भाई ये बहुत गहरा आदमी है, मतलब ये है कि वो ये जो आपका वाइटलिटी या जो आपका अपन जो फीवरिंग आप जो कह रहे हो, मतलब उस पे उसका जो है वो उतना वो नहीं रहता बेस। अजी कैसे तो नहीं हो अनिल जी, मेरे को वो स्टेट जिसके अंदर आपके न तो कोई देखो परिवार की समस्या है, कोई परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, न कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न आपको किसी को ऐसा जवाब देना है, ये आप कर चुके हो, तो ये वाली चीजें नहीं चेज कर रही है आपको। आप बैठे हो एक ऐसे माहौल का सोचिए, ये सारे मूवमेंट्स आपको नहीं टच कर रहे, पर इसके अंदर आप आए हो, या तो आप तामसिक हो, या यदि आप साधना कर रहे हो इंटेंस हो, तो क्या वो चीज आपको नहीं प्रवेश करेगी? आपकी मानसिकता क्या होगी? अभी तो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए उस स्टेट का विशेष कोई ये है नहीं। दूसरे वाले हैं उनके ये है कि इतनी माला जपनी, इतना इंटेंस रहना, इतनी मेरे को सिद्धि प्राप्त करनी, उनके ये बात। जो वास्तव में गुरुवादी लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो इस चीज को बिल्कुल समझ सकते हैं। नहीं तो ये सरोकार कैसे नहीं होगा, या तो आप तामसिकता में चले जाओगे, मतलब व्यक्ति सोचेगा तो क्या सोचेगा, ये तो है नहीं कि माइंड ब्लैंक हो जाएगा। हाँ नहीं, वो तो है ही, काम मतलब करते हैं, जब भी सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है उन्हें कुछ किया, तो वो तो भी ये वो तो साधना है के ही। अंदर जो आदमी अपनी साधना से बहुत ज्यादा सरोकार रख रहा है, उसकी बात है। हम्म। ऐसे के अंदर कॉन्शियसनेस इजियर क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर वो सरोकार साधना से और से, ये तो देखिए, ये समस्या मार्ग को तय करके ही आप जीत सकते हो, इसके इससे पहले कोई बातें नहीं की जा सकती। हाँ तो ये अपने को तोलने की आदत तो रहती है ना भाई, मैंने कितना किया, मतलब वो अपने आप को जजमेंट कह लो, वर्ड्स को आप कुछ भी कह सकते हो, पर हाँ, वो पर वो ये बात बात तो जाती नहीं श्री है। अरविंद खुद की बता रहे हैं कि बिल्कुल। कौन व्यक्ति है जो ये जज नहीं करता होगा। हाँ, आएगी वो नहीं बात नहीं, तो आती है। मतलब जो साधना कर रहा है, या जिसके ये क्लैरिटी है, कितना शार्प माइंड है श्री अरविंदो का। माँ अगर ये कह रही हैं कि अब इस उम्र में जाके ऐसा लगता है कि मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ, मतलब कोई चेतना तो है जो देख रही है हाँ चीजों को। बिल्कुल, वो वॉचफुल है ना, वो तो हो ही रहा है, मतलब कुछ ना तो वो कुछ। गलत है या सही है? अगर वो उनकी सही है तो किसी की भी सही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि अनिल जी की तो गलत है, इनकी सही है, ये तो कोई बात नहीं भी। यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल। तो चीजों को रखने का ये, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी नहीं, ये तो मार्ग को तय करके ही, और जो भी मार्ग की समस्याएं हैं वो तो जीतोगे, तो मार्ग तय करके ही तो जीतोगे। हाँ वो तो माइलस्टोन जब भी आएंगे जब चलेंगे सर, ऐसा थोड़ी आ जाएंगे। वो तो वो तो ये जब आप चलोगे जब ही दिखेगा भाई, ये आ गया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसलिए नेक्स्ट। ये ऐसे होगा। एक ऐसी चीज है जो स्पष्ट मेरे को तो नजर आ रही है, पर ये तो आप पहले मार्ग अपनाओ, हम्म, बिल्कुल।
और कॉन्शियसनेस इजियर कैसे हो, कि मैं तो देखता हूं आप अगर रेस्ट कर रहे हो और ये विचार आ जाता है यार अपन ने किया क्या है, इतने कई बार भारी सांस है, आप लेटे फिर खड़े हो गए आप। और जबकि ये नहीं कि कोई परिवार, आपको परिवार का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कभी। हाँ नहीं, वो ड्रैगिंग फोर्सेस कम है ही नहीं आपके मतलब अंदर, तो इसके फिर अंदर वो जो आप जो सोच रहे हो वो तो कभी इश्यूज ही नहीं रहे, तो आपको इसके अलावा सोचना पड़ेगा कि भी इश्यूज दूसरे भी होते हैं। न ये कि आपके शेयर में क्या होगा या आपके कोई व्यापार में क्या होगा या आपकी प्राप्ति में क्या होगा, ये बातें भी नहीं है। ये तो कोई से भी कंसर्न नहीं है। कॉन्शियसनेस को इजी करना ये प्री मैच्योरली हो नहीं सकता इस तरीके से। इफ यू कीप, अब दूसरे पे आ जाओ, इफ यू कीप ए क्वाइट माइंड एंड ए कांस्टेंट कांटेक्ट विथ माई सेल्फ एंड द मदर, यदि तू कॉन्स्टेंटली मेरे और माँ के कांटेक्ट में है, एंड द ट्रू लाइट एंड फोर्स, और सच्ची लाइट और फोर्स के कांटेक्ट में है, देन थिंग्स विल बिकम इजी एंड स्ट्रेट। इट इज द ओनली वे टू गेट टू द रियलाइजेशन, यही एकमात्र तरीका है। वहां भौतिक उपस्थिति में रह के अगर श्री अरविंद ये कह रहे हैं तू माँ और मेरे सतत संपर्क में रह, प्रकाश के अंदर रह, भाई और आप क्या कर सकते हो अभी, लाइट और फोर्स के संपर्क में रह। ये इसको कह रहे हैं इफ यू कीप ए क्वाइट माइंड, शांत मन रख। आप अभी जो माँ और श्री अरविंद की पिक्चर बना रहे हो ये तो है उसके अंदर ऑलरेडी। हाँ हाँ, फिर और भी मेरे सत डिस्ट्रैक्शन है, फिर भी मतलब है, वहां भी जो है, वहां भी ये बात नहीं बन पा रही है, ये कह रहे हैं वो, मतलब उनकी उपस्थिति में भी। अभी ये तो सामने है ही ना, ये बातें जो जो चीजें इससे फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं वो तो फैक्ट्स हैं ही। बिल्कुल। अगर श्री अरविंद ये कह रहे हैं यार क्यों विचलित हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों इतना तेरी साधना के बारे में परेशान हो रहा है, जब वहां ये चीजें हैं तो आप इसको ये समझो ये प्रकृति की गांठें हैं, ये तय करने से होगा। उसने गुरु अपना लिया और गुरु साक्षात परमात्मा सामने बैठे हैं, माँ और श्री अरविंद। श्री अरविंद लिख रहे हैं, आप सोचिए। तो इससे बहुत सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो ये कांटेक्ट में रहो, और ये कांस्टेंट कांटेक्ट में नहीं, कौन नहीं रखने दिया जा रहा। तो ये तो है नहीं कि वो ये कह रहे मेरे कमरे में रहो, हम्म। वो तो जो स्थितियां हैं वहां की हैं, तू कांस्टेंट कांटेक्ट में नहीं रह रहा, उसी आश्रम में रह रहे हो, उनकी विसिनिटी में हो, तो आप कांस्टेंट कांटेक्ट में, कांस्टेंट क्या कांटेक्ट में ही नहीं रहता व्यक्ति। तो अभी करने की क्या चीज है वो देख लो आप। ये तो बात आंतरिक चेतना की है आपकी, और वो ये भी नहीं है इनसिंसियर है, ये तो सिंसियर है, बहुत ज्यादा कंसर्न है अपनी साधना को लेके। ये मनोभाव आपको उनके टच से अलग कर देता है। अब ये देखो ये कितनी विचित्र बात है। साइकोलॉजी बड़ी गजब। ये तो कह रहा मेरे को आशा आई, एक एक शब्द के पीछे की साइकोलॉजी नहीं, उससे पहले बेचारे को आशा ही नहीं थी, माँ ने ये कह दिया कि नहीं तेरी प्रगति हो रही है, और सुपरामेंटल फ्यूचर मेरे को एक फूल दिया। मतलब वो आदमी इतना ज्यादा सीरियस है अपनी साधना को लेके, इनसिंसियर आदमी नहीं है ये। तब श्री अरविंद उसको कह रहे हैं एक तो माइंड को शांत रख, और तू मेरे और माँ के सतत संपर्क में रहे, प्रकाश में रहे और फोर्स में रहे, यही एकमात्र तरीका है। तो ये सारी बातें अंतर विरोधात्मक लगती हैं अनिल जी, अगर यो रखा जाए उस साइकोलॉजी में, यदि आप वो जवाब दे रहे हो तो मतलब आप सोचिए क्या कह रहे हो। हम्म। अगर इस बात को नहीं रोका जाए तो आप कहते हो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही करना चाहिए यार, किस लिए किसके लिए कहा जा रहा है, हम तो अभी उस स्थिति उस निर्णय तक ही नहीं आ रहे। वो व्यक्ति किसके तो समक्ष है, कौन पत्र लिख रहा है, ये सारी बातें समझो। उसको होप ही ये है कि माँ ने ये कहा, मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। उसके जीवन में यही आशा है कि वो विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमको तो फर्क नहीं पड़ रहा इससे कि हम विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या आपका अभी होप ही एकमात्र ये कहो कि मेरे तो जीवन में आशा ही है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो आशा क्या है। क्या इस तरीके से जीवन रखते हैं हम ना।
पर ठीक है जो चल रहा है सो। आशा शब्द बहुत बड़ा शब्द है यूं देखो तो आप। तीसरा, इट इज ए मिस्टेक टू थिंक दैट दिस मेथड विल नॉट लीड यू टू द सुप्रामेंटल रियलाइजेशन। कौन सा मेथड? इट इज द ओनली वे टू एडवांस टुवर्ड्स द सुप्रामेंटल चेंज। कौन सा वे? कौन सा वे हो सकता है ये जो सेकंड के अंदर बताया था, कांस्टेंट कांटेक्ट विद माई सेल्फ एंड द माई मदर, सेल्फ एंड दी मदर, और लाइट ट्रू एंड लाइट और फोर्स के कांटेक्ट में। ये व्यक्ति को लगता है भीतर से, क्यों क्यों लगता है ये? अच्छा, ये क्यों लगता है उसको? अगर आप उसकी जगह हो, क्या ये प्रश्न नहीं उठे? आप सिंसियर हो, आपके कंसर्न नहीं है जो लोअर व्यक्ति के जो कंसर्न रहते हैं, जो भी लोअर कंसर्न है नहीं है आपके, और फिर भी आप पॉजिटिव कोई चीज कर पाओ, होती नहीं है। इट इज ए मिस्टेक टू थिंक दैट दिस मेथड विल नॉट लीड यू टू द सुप्रामेंटल रियलाइजेशन। इसको लग रहा है कि ये जो श्री अरविंद तरीका बता रहे हैं उससे थोड़ी काम बनेगा। श्री अरविंद उसको मेथड बता रहे हैं और उसको ये लग रहा है, जबकि वो सीरियस है साधना के प्रति, तो ये कह रहा है क्वाइट माइंड रखने से और मेरे और मां से सतत संपर्क रखने से थोड़ी कोई सुप्रामेंटल रियलाइजेशन हो जाएगा। कुछ तो बताओ जिससे, अरे कुछ तो होल्ड ऑन टू करने के लिए दो मेरे को, कुछ तो दो पकड़ने के लिए। अरे मेरे को ये कह दो इतनी बार तू जब किया कर, मेरे से नहीं किया जाए तो मेरे को भीतर ये तो पता चले कि मैं नहीं कर पाया इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। आदमी को ये भी अच्छा लगता है कि आपको मैं ये कहूं कि 1.25 करोड़ रोज के जब किया करो तब आपको भगवान मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ ये बात तो ठीक है। 1.25 करोड़ मैं नहीं कर पा रहा इसलिए नहीं मिल पा रहे, तो आपको एक पकड़ने की चीज तो मिली, आपके नहीं जाने का भी कारण तो मिला कम से कम। अभी जब व्यक्ति को ये कि यार करें क्या ये वाली बात, क्योंकि पकड़ने को कोई चीज नहीं, तो ओपन टुवर्ड्स सी मदर। अभी क्या करें मतलब ओपनिंग में? कुछ तो बताओ। यही अर्जुन की थी कि भाई कुछ तो बताओ, जबकि गीता भी कह रही है इसके साइंस साइकोलॉजिकल हैं बाहरी नहीं। ये तो धीरे 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 जीने से ही होता है। इट इज द ओनली वे टू एडवांस टुवर्ड्स दिस सुप्रामेंटल चेंज। अब यूं तो सामान्य सी बात लगती है, पर कितनी डीप इसके अंदर साइकोलॉजी की उहापोह निकल के आ रही है इस माध्यम से। वो श्री अरविंद की माँ की बात नहीं मान रहा, उनके सतत संपर्क में रहने से सुप्रामेंटल चेंज हो जाएगा ये भी नहीं मान रहा। यही तो कह रहे हैं इट इज ए मिस्टेक, कि जो मैंने मार्ग बताया है तेरे को लगता है इससे नहीं होगा, तू इंडिपेंडेंटली चला जाएगा मतलब। ठीक है ये बात देविका जी? हाँ जी। भाई इसका मतलब देखो आप, व्यक्ति चाह रहा है साधना करना, ये देखो आप, वो सिंसियर है सीरियस है, पर आपकी सो कॉल्ड सिंसियरिटी है वो आप और आपके और श्री अरविंद के बीच में यहाँ एक गैप पैदा कर रही है। आप उसकी साइकोलॉजी में खड़े होके तो देखो, तो हमारी जितनी बातें हैं ये इसीलिए हम कहते हैं इससे काम नहीं बनेगा, ये चीज दूसरी है, ये इससे नहीं बनेगा। अब यहां अगर हो तो आप करो क्या? अब कहते यार अब करें क्या तो फिर? चौथा, इट इज बिकॉज यू बिकम डाउटफुल। अच्छा डाउटफुल क्यों होता है व्यक्ति अनिल जी? और दूसरे रास्ते तू फॉलो करना शुरू कर देता है एंड बिगिन टू फॉलो आफ्टर अदर वेज। डाउट तो डाउटफुल क्यों इसी, होता है? वो ट्रस्ट नहीं, मतलब उसको वो मिसट्रस्ट है, मतलब उसको ना लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। ना, हाँ तो डाउट तो है ही कि मतलब हाँ आप कह रहे नहीं, ये इसी को डाउट कहते हैं, पर होता ही क्यों है डाउट? हाँ, तो विश्वास की कमी हो रही है, मतलब वो जो बता रहे हैं, मतलब उसको उनके ऊपर अब आप विश्वास ही नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई तो फेथ नहीं। क्योंकि आदमी के हाथ की बात है क्या? उसने तो अपने आप को दे हाँ, तो दिया उनको, वो ऑलरेडी साधक फेथ है। फेथ जो अजी है वो वो तो साधक दिख है, गया। आप बात क्या कर रहे हो? वो तो उनको वैसे उस जितना हम सोच सकते हैं विश्वास को, उससे ज्यादा वो कर चुका है।
उसने फिर अपना भी घर छोड़ दिया, उसने अपने पोजेशंस छोड़ दिए, फिर और भी मतलब डाउट आ ही आपको रहा है ना। कहें विश्वास करो, मतलब और क्या विश्वास करो यार, जी में जी निकाल के थोड़ी दिया जाता है कोई। आप दे चुके हो भाई, जिसको देना कहते हो वो तो ऑलरेडी कर चुका है। डाउट्स तो तब आएंगे जब क्लैरिटी नहीं है माइंड में, चाहे वो दिया है क्लैरिटी या इनसिंसियरिटी के कारण है, डाउट इसलिए है क्योंकि कंसर्न खुद से है, इसलिए डाउट आता है। आपके यदि अपने आप से कंसर्न होगा तो ही डाउट आएगा, नहीं डाउट नहीं आ सकता। ये साधना की एक विशेष बात है, आपका अपने आप से ही सरोकार रहता है, इसलिए डाउट है, और कोई कारण नहीं है डाउट का, डाउट आ ही नहीं सकता। डाउट क्या पड़ा इसमें, ये है डाउट का कारण। मतलब ईगो हो गया मैं। ईगो तो फंडामेंटली, ईगो से तो आप मल्टीप्लिसिटी बने हो, वो ईगो एक अलग चीज है। आपके लोअर सेल्फ के साथ जो कंसर्न है आपका बार 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 बार, वो डाउट का कारण है। ये आपकी साइकोलॉजी का बहुत नजदीक से, तो क्यों आदमी जा पाता है और दूसरा क्यों नहीं जा पाता। एंड बिगिन टू फॉलो आफ्टर अदर वेज, ये क्या हो सकते हैं देविका जी, दूसरे तरीके तू फॉलो करना शुरू कर देता है, वो क्या हो सकते हैं। दूसरे तरीके तो वो है जो शेरविन ने बताए हैं, उसको छोड़ के और कोई तरीके उसने अपनाए होंगे। हाँ ठीक है, वो क्या हो सकते हैं। नहीं, वो तो अब कुछ भी हो सकता है, वो तो हम नहीं कह सकते शेरविन ने, क्योंकि ओहो, शेरविन मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि श्री अरविंद ने अलग से लिखा है, मेरे पास है आपके पास नहीं है, या नहीं इसके नहीं, इस टेक्स्ट के माध्यम से आपको महसूस क्या होता है, अदरवेज क्या हो सकता है। इस चेतना में व्यक्ति है, वो अदरवे क्या करेगा, दूसरे की लाइट में देखो, 2 नंबर की, वो माँ और श्री अरविंद के प्रति ओपन नहीं रहता, वो क्या करता है, यार इससे सिद्धि नहीं मिली, ये भी करके देख लेते हैं, अलग से पढ़ के देख लेता हूं, अलग से ये कोर्स करके देख लेता हूं, ये निर्वाण का कोर्स है, ये कर लेते हैं। भाई अपने भी तो है, रोज सुबह क्लास हो रही है, उसका होमवर्क अगर दिया जाए, उसकी बजाय आप उछल उछल के दूसरे और पकड़ते रहो, मतलब अदरवेज, क्योंकि उसके अंदर यार इसको भी पकड़ लें, ये भी कर लें, आदमी के इंडिपेंडेंटली लगी रहती है, ये कर लें अपन। तो उसके लिए ये रमन महर्षि वाला भी ठीक है, जो आदमी सीरियस है वो पढ़ता भी होगा, श्री अरविंदो ने और कई चीजें कही होंगी, वो भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, श्री अरविंद के नाम से कर रहा होगा। पर आपको तो ये जब कह दिया, आपके लिए गुरु वाक्य ये है कि तू ओपन हो मेरे और माँ के प्रति, वो और प्रैक्टिसेस में जा रहा होगा, वो अपने तरीके से कर रहा होगा, वो ध्यान कर रहा होगा, वो पीस को कॉल डाउन कर रहा होगा, वो जो भी कर रहा होगा। नहीं, इन सब के पीछे तो एक चीज है ना, चाहे वो मेडिटेट कर रहा है, चाहे वो जप कर रहा है, अगर तो प्राइम कंडीशन है कि वो कांस्टेंट उसका कांटेक्ट है माँ और शेरविन से, तो नहीं ठीक है, है। नहीं तो है, वो तो नहीं है, श्री अरविंद कह ही रहे हैं, ऊपर मना कर दिया ना उसको, वो तो कह ही जी, दिया कि ये कर, वो नहीं है, इसलिए ये तो हमारे लिए मानने की या कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, तो श्री अरविंद ने कह ही दिया 2 नंबर में, ये तो इश्यू है ही नहीं। इसीलिए तो क्लैरिटी से भी, जैसे आप कि ये शब्द कहे तो इसमें से ये रीड करो, फिर अब वो तो है ही नहीं उसके कंडीशन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन में डाउट कब आएगा, जब आप अपने आप से कंसर्न्ड होगे तो डाउट आएगा, नहीं डाउट नहीं आ सकता। उसी माहौल में एक तो कह रहा है अरे क्या कल्याण है, गुरु जी की छाया के छत्र छाया में है, और दूसरा व्यक्ति पिछली बार हमने पढ़ा था वो उसमें है ही नहीं, वहां मां श्री अरविंद के पास होके वहां उनके पास नहीं है, वो तो बेचारा परेशान है। तो इसलिए ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल अध्ययन है। बिगिन टू फॉलो आफ्टर अदर वेज एंड अदर लोअर एक्सपीरियंसेस, आ गया ना ये लोअर एक्सपीरियंसेस। लोअर एक्सपीरियंस कौन से हो सकते हैं, दैट यू गेट अगेन कंफ्यूज्ड एंड फुल ऑफ इनसर्टिट्यूड्स। लोअर एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या हो सकता है, लोअर एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं। और इसकी यार ये लोअर एक्सपीरियंसेस हों तो ठीक रहे, ये लो नहीं मान रहा,
इसको लग रहा है इससे साधना होगी, उसको वो एक्सपीरियंस मानता है। कई यहाँ आए, वो देखते हैं सीरियस रहना, यो सारे समय माँ को पुकारते रहना, अरे वो तुम जो सोच रहे हो वो इंटेंसिटी उसको कहते नहीं। पर हाँ, शुरू में उतनी ठीक है, नहीं तो व्यक्ति को वो इंटेंसिटी लगती है, हर काम कर रहे हैं उसमें बस माँ माँ माँ, उसके होठ भी चलते रहते हैं, माँ 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 माँ, कई के होठ भी चलते रहते हैं। कई आप भी बता रहे हो कि वो बैठे हैं अपना अलग ही जप कर रहे हैं, वो तो इरिटेशन रहता है उससे, वो तो वहां है ही नहीं, उसका कंसर्न एक्चुअल में माँ से है नहीं, उसका तो किसी और ही चीज से है। कहने को वो आदमी तो कहता मैं तो जप कर रहा हूँ, माँ श्री अरविंद कह रहे तू तो यहाँ बैठा ही नहीं, यहाँ हम सेशन कर रहे हैं, आपका कंसर्न किसी दूसरी चीज से है। कहने को आप जप कर रहे हो, कितना इरिटेशन होता है उससे। देविका जी ने तो कहा ये बहुत इरिटेट करती है ये चीज, उससे ज्यादा इरिटेट हम कर रहे हैं। आप समझो ये होता क्या, बड़ी सूक्ष्म सी बातें चल रही है। लोअर एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं देविका जी? लोअर एक्सपीरियंस वो भी हो सकते हैं, जैसे कोई लाइटें नजर आ गई, रोशनी नजर आ गई, कोई दर्शन हो हाँ गए, हाँ उसी में ही भ्रम हो जाता है कि हमने हाँ कर लिया। कभी हाँ कोई इंट्यूशन आ गई और उस वो चीज करेक्ट हो गई, तो फिर बंदा इसी में खुश हो गया कि भाई हाँ, हाँ मैंने पहले ही फोर्स ही कर लिया था, ये हाँ। क्लियर। भाई दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि गुरुदेव मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, ये साइकिक का और का। श्री अरबिंदो ने कहा रे तेरे को जो वेलवेटी सॉफ्टनेस महसूस हुई थी, वो डीपेस्ट एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सपीरियंस है साधना का। इसमें व्यक्ति के ये रहता है मेरे को ये पावर्स खुल जाएंगी, मेरे को ये दृष्टि खुल जाएगी, मेरे को ये चीज खुल जाएगी, या जो भी उसके मंसूबे रहते हैं हर व्यक्ति के हैं, उसी से वो शुरू करता है। उन मंसूबों से एक नहीं है जो बिना, उसका अपना एक तरीका है। अगर वो समर्पण भी बोलता है तो उसने एक पिक्चर बना रखी है समर्पण की, जब उस पिक्चर के साथ ब्रीच होती है, अगर आप सच्चे हो तो ब्रीच होगी उसके अंदर, नहीं हो तो व्यक्ति भारी बन जाता है। आपने देखा है लोगों को कितने वो जप करते रहते हैं और वो उसमें है ही नहीं उस जगह। कितना परेशान करने वाली बात है। आप कहते भैया इसको नहीं, दूसरा कहते कितना सिंसियर आदमी है, 1 मिनट नहीं खोता। आप कहते ये सिंसियर किसका? आप शांति से दो जने बैठ के हंस नहीं सको, आप खुले मन से नहीं हो, भारी बन के बैठे हो, अरे ये कौन सा जीवन हुआ, इसको आप इंटेंसिटी बोलते हो? ये तो कॉमन सेंस ही नहीं है। साधना में भारी होना नहीं होता, सहज होना होता है। सहज आप उस स्थिति में हो। मास्टरी उन कोई भारी होके बैठे थे क्या? भारी होने का मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटी बहुत छोटी है, छोटी सी चीज आती बोझ बन जाती है आपके ऊपर। इतना तो आप साइकोलॉजी समझ सकते हो। एक किसी को थोड़े से पैसे दे दिए, उसको बेचारे को डाइजेशन खराब हो जाएगा। आप, मैं क्लोजली जानता हूं ऐसे को, उसके जेब के अंदर अगर 1,000 रुपए भी है वो सो नहीं सकता यार, कोई निकाल लेगा। एक जने के केयर फ्रीनेस होगा, ठीक है यार, मतलब इसके लिए नींद थोड़ी बेचनी लिखी है कोई। आदमी आदमी के ऊपर एक किसी के छोटी सी चीज हो जाए हैवी हो जाता है वो। एक के अंदर सहज रूप से चाहे उसमें कुछ भी हो, वो यूं एकदम ओपन है, खुला है वो। आप उसके पास जाके ये नहीं पहचान सकते कि अरे ये इतना ऐसा है, ये तो सहज रूप से मिला। ये साइकोलॉजिकली आप दोबारा समझ के और ये क्लियरली आप नजदीक से, क्योंकि अरे भाई आप जिस परिकर में हो वहां तो इस तरीके के लोग कम दिखते हैं, वहां तो ये भारी भारी लोग मिलते हैं। एक छोटा सा थर्ड ग्रेड आदमी होता है या कोई बाबू है, वो ही कितना भारी रहता है, वो कह रहा मैं साहब से बड़ा हूं। तो ये है साधना की ये जो बात चल रही है, ठीक है, यहां तक तो अब समझ में आ रही है। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या, या बात और कोई इसमें कुछ है? नहीं, क्लियर है। समझ आ रहा है ना? हाँ जी। बहुत जबरदस्त रिवीलिंग पत्र है, ऐसे हम चूक जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं और कैसे पढ़ें, हम चूकते हैं। ये सारे पत्र ऐसी हैं, यदि उसकी साइकोलॉजी में प्रवेश नहीं करो तो इतने पत्रों को पढ़ो कैसे? अगर आप इस मार्ग के नहीं हो तो ये संभव ही नहीं है कि आप बार बार की डाउट आ गया कैसे आया, हो पाया तो हर शब्द को इतना आप लेके चलो, ये कैसे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बाद में लोअर एक्सपीरियंसेस,
कौन नहीं है जिसको लोअर एक्सपीरियंसेस का टेस्ट नहीं होगा। अब आप कह दो गणेश जी दिख गए यार, ये लोअर एक्सपीरियंस है। अरे माँ के प्रति अनन्य सिंसियरिटी रखना एक सबसे ऊंची दुर्लभ चीज है इस विश्व की, वो यदि आप रख पाओ तो। और ये रख पाओ, और मेरे को किस लिए एक्सपीरियंस चाहिए यार? माँ के पास होने से मतलब इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है? आपकी बुद्धि तो ऑलरेडी भ्रमित है। गुरु के पास बैठे हो और किसी चीज की इच्छा कर रहे हो तो भ्रमित तो आप ऑलरेडी हो। मतलब कितना भ्रमित आदमी तो पहले ही है। माँ के पास है, श्री अरविंद के पास है, और कोई कृतज्ञता भरनी चाहिए। ये तो अंतरात्मा, अगर आप जस्ट अंतरात्मा की सोचो, उसके क्या रहेगा? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हमने क्या ऐसा किया था कि इनकी हमको उपस्थिति मिल रही है, सानिध्य मिल रहा है। ये करते ही तो भाव ही चेंज हो गया। ये वाइटल का भाव है। मेरे को अनुभव नहीं मिले, मेरे को ये चीज नहीं मिली, ये बात उठ कहां से रही है? जैसे ये मूवमेंट नहीं, ये पूरा जगत है। अगर आपके ये चीज क्रॉप अप कर सकती है कि यार अनुभव नहीं मिले, जीवन में कुछ रिक्तता है, तो आप ध्यान दो इसके ऊपर। ये साइकिक एटीट्यूड नहीं है, ये वाइटल आ रहा है, बुदबुदा रहा है चुपचाप, और यूं करके आएगा कि मैं तो सिंसियर हूं साधना के प्रति। अरे तेरा लेना देना ही नहीं है साधना का। साधना तो इसमें है कि अपने आप को दे देना। अभी मूवमेंट है कि मेरे को क्या मिला, ये इसकी चाबी है। क्यों? ठीक है देविका जी, अब कुछ पकड़ में आ रही है ना ये बात। और ये तब पकड़ में आएगी जब गुरुदेव सामने बैठे होंगे। आप कह रहे हो मैं चला जाऊंगा, यार कहां से चले जाओगे? श्री अरविंद तो सामने बैठे हैं, वो तो पत्र लिख रहे हैं। आप मैं चला जाऊंगा, अरे किस चीज से, किससे चले जाओगे? इसीलिए प्रैक्टिकल तैयारी करो अभी। एक किसी भी शब्द को कि क्या उसको फॉलो कर सकते हो, क्या कोई डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, पता चल जाएगा। परसों आपने किया है, और फिर क्या आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे? यार 25 साल हो गए, कुछ दिखाई नहीं आज तक। तो जैसे दिलीप कुमार रॉय ने उनको, इंदिरा देवी को कह, देख तेरे को तो बांसुरी सुनती, भजन सुनते, भजन लिखती है तू, मेरे को आज तक छिपकली नहीं दिखी, तू मेरे को कहाँ गुरु बना रही है? ये कैसे नहीं रहेगा मेरे को ये बताओ। यदि आप बहुत ज्यादा इंटेंस हो तो वो आपको कहीं तो लेके जाएगा। या आप कुछ नहीं कर रहे? आदमी क्या पलट के अपने आप को एनालाइज नहीं करेगा, आकलन नहीं करेगा व्यक्ति कि इतने दिन से मेरे ये हुआ, मेरी प्रगति हुई या नहीं हुई? पर इस बात को लेने का एक साइकिक तरीका है, और इस बात को लेने का वाइटलिस्टिक तरीका है। और जैसा हमारा गठन है वाइटलिस्टिक ही रहता है। साइकिक आना तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि इसमें धोखे, बहुत ज्यादा धोखे हैं, बहुत ही ज्यादा धोखे हैं, बहुत ज्यादा धोखे हैं। नानक का बेटा जो है, उसको उन्होंने गद्दी नहीं दी, जबकि उसका खुद का संप्रदाय ब्रह्मचारी है, सारी चीज है, वो वाली चीज उसमें नहीं, दूसरे को गद्दी दी। गुरु अंगद देव बने फिर वो। साधना के अंदर सफलता दूसरे मायनों से है, और उन मायनों का अभी आपको सेंस नहीं है। आपकी प्रकृति वही चीज नहीं छोड़ती। ये है, सिखों में तो साफ साफ नजर आ रहा है, या कोई भी जो आपके जो स्पिरिचुअल लाइन्स है उनको बिल्कुल पक्का पता है। आप ब्रह्मचर्य वगैरह रख रहे हो तो भी कोई जरूरी नहीं। नानक देव के अपने बेटे को नहीं बनाया अभी, जबकि अभी भी उनके नाम से संप्रदाय तो है ही, ब्रह्मचारी हैं, सारी चीज है। वो कोई साधना की सफलता के लिए वो चीज नहीं, जो चीज की जरूरत है। परीक्षा लेते थे अलग अलग तरीके की, जाओ बबूल का फल तोड़ लाओ। अरे तो बबूल के कभी फल लगता है क्या? कांटे लाने की कहो तो ठीक है। व्यक्ति के सेल्फ विल रहती है। यदि ये सेल्फ विल आप तोड़ के गुरु की विल को स्थापित कर सको, ये काम साइकिक कर सकता है, और कोई भाग को इसका पता नहीं। इसलिए हम दे नहीं पा रहे। जहां तक आपकी सीमा के अंदर आता है वहां तक आध्यात्मिकता को, माँ को स्वीकार कर रहे हो। आप ये सीमा तोड़ के कि माँ को अपने आप को मिला दो या माँ को दे दो, आपकी अपनी सीमा नहीं रहे, इसका हमको पता नहीं।
आपकी जो एक सीमा, एक दायरा है, उसमें मां आ जाए, उसमें समर्पण भी हो जाए, आपका भाव भी परिपुष्ट हो जाए, वो सब ठीक है। ये बात है एक। और एक रस ही इसमें आ रहा है, अरे माँ को जितना दे दिया उतना कम है, नॉट इनफ। पूरा समर्पण कर दिया उस आदमी ने, कृष्ण प्रेम ने। और फिर बाद में माँ कह रही है बट यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड, और वो व्यक्ति कहता है नॉट इनफ। ये बात साइकिक कह सकता है। कृतज्ञता भरी रहती है उस आदमी के। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये इसकी साइकोलॉजी में जाए बिना, पर ये ऐसी डिटेल्स है जो साधना की डिटेल्स हैं। कीप टू वन वे, एक मार्ग अपनाओ, द वे शोन टू यू बाय मी, मैंने जो मार्ग दिखाया उस पे चल। मतलब उस पे नहीं चल रहा है, और व्यक्ति नहीं चलता। यही चीज मैं इतने लंबे समय से यहां देख पा रहा हूं। औरों की तो बात ही नहीं, यहां तो सब वही आए हैं जो अनन्य रूप से ये हैं, पर वो अनन्यता एक स्तर के ऊपर है। सफलता असफलता कौन सी चीज तय करती है, वो इसी के ऊपर है। नहीं रह पाते, नहीं रख पाते अपने आप को। मैं तो अपने आप को देखता हूं, ये तब की है जब और कोई पुकार नहीं, और कोई प्यास नहीं, और कोई करने को काम नहीं, और कोई चीज अच्छी लगती नहीं। फिर भी ये चीज रख पाना, जिसको गीता कह रही है व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, और एक दूसरी है अव्यवसायत्मिका बुद्धि। गीता कह रही इरेजोल्यूट आपका जो है ना माइंड है, वो बुद्धि, इंटेलिजेंस, इधर चलो इधर चलो इधर चलो। और ये व्यक्ति है जिसकी रिजोल्यूट है व्यवसायत्मिका, गीता में है ये सीधे चलती है। कौन सी चीज है जो ये बनाती है ये, इसके ऊपर और गहराई से विचार करो। कौन सी बात है जो बिल्कुल सीधे जाती है? वही बात है जो अपने आप से कंसर्न नहीं। पर अब ये लाओ कहां से ये वाली बात की केवल मां से कंसर्न हो, कि साइकिक आपका रहे। ये बात अगर आपने करी नहीं, ये इसी से रास्ता हो सकता है। इसीलिए एजुकेशन में यही बात करिए, साइकिक। अब दूसरे साइकिक की तो बात करते हैं, पर उसका क्या लेना देना है? अब इस एटीट्यूड से आप समझो साइकिक को, इसके झरोके से अब देखो, इससे जो करने की चीज है क्या है, और क्या मांग कर रहे हैं ये, वो देखो। क्यों देविका जी, साइकिक जैसे कहा जाता है, और अब इसके माध्यम से देखो उसकी डिमांड वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। बिना साइकिक एटीट्यूड ये सारी जो समस्याएं आ रही है वो इसीलिए अराइज हो रही है क्योंकि एटीट्यूड वाइटलिस्टिक या दूसरा वाला है। इसलिए व्यक्ति कंफ्यूज्ड भी है। श्री अरविंद कह रहे हैं तेरे को जो मैंने मार्ग बनाया बताया उसको फॉलो कर। श्री अरविंद की उपस्थिति में नहीं कर रहा, क्या संभावना है कि हम कर लेंगे? व्यक्ति सेल्फ विल रखता है। मैं इससे चेतावनी ये दे रहा हूं हम सबको, ये नहीं कि मैं अपने आप को कोई कंसेशन दे रहा हूं, पर अगर आप कुछ जीवन में वर्थवाइल चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग लेटर्स है ना। इसके माध्यम से जीवन की गुत्थियां निकल के आ रही है। देखो अगर इस तरीके से पढ़ो तो फिर एक पुस्तक क्या हुई, ये तो पूरे जगत का रीडिंग कर लिया आपने, एक एक डीप साइकोलॉजी। अब ये आप देखो, आप उम्र कितनी करी उससे मतलब नहीं, अभी इन चीजों का, इन स्टेट्स का सेंस नहीं कि ये कैसे होगी आपकी। ये नहीं किया तो फिर क्या किया? इससे आगे चलते हैं। कीप टू वन वे, एक तरीका अपना जो मैंने तेरे को दिखाया है। इट इज बाय फॉलोइंग दिस वे, इस मार्ग को फॉलो करने से दैट यू कैन रीच द वाइडनेस यू वांट। उससे वाइडनेस आएगी। अच्छा ये क्या कर रहा है वाइडनेस के लिए? क्या कर रहा होगा वाइडनेस के लिए? ये वाइडनेस चाहता है तो क्या कर रहा होगा वाइडनेस के लिए? ऐसा नहीं कि यहाँ कोई लिखा है या अलग से कुंजी है वो मेरे पास है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास कुंजी नहीं है। आंसर की मेरे पास दे रखी है और आपके पास नहीं होगी। कि वाइडनेस वो ये हो सकता है कि वो अलग अलग रास्ते अपना रहा हो ताकि वो वाइड हो जाए, माइंड वाइड हो जाए। जैसे मेडिटेशन भी कर ली, जाप भी कर लिया, बुक्स पढ़ ली। पहले ये उसके ये बात ही क्यों उठी कि मैं मेरे वाइडनेस नहीं है?
तो ही तो कोशिश करी होगी। अरे भाई ये प्रश्न उठने से ही तो वाइडनेस की कोशिश करी होगी उसने। ये प्रश्न कहां से उठा उसके, ये अपने वाइडनेस नहीं है। अरे इस भाव के बिना वो वाइडनेस की कोशिश कर सकता है क्या, पहले तो ये बताओ। उसको नैरोनेस लगी होगी तभी वो हाँ चीज। लगी होगी बिल्कुल। क्यों लगी होगी, क्यों लगी? नैरोनेस हमारे में तब आती है जब कि हम अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जितना हम ऑफर करते हैं तो ऑफरिंग से ही वाइडनेस आती है। हाँ पर ये तो जो ये प्रयास कर रहा है उससे तो सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ रही है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं। तभी नैरोनेस आ रही है। नैरोनेस है इसलिए सेल्फ सेंटर्डनेस है। इसको जो वाइडनेस कह रहा है उसको श्री अरविंद कह रहे हैं इससे तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। ये जिस वाइडनेस का प्रयास कर रहा है श्री अरविंद उसका खंडन कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं उस वाइडनेस के लिए। यही तो चल रहा है ना यहाँ। तो फिर इसके बात कहां से उठी है कि मैं वाइड नहीं हूं, ये बात कैसे उठी? नहीं, उसको ये अनुभव हुआ होगा ना कि वो। अनुभव नहीं, इसको लगाए। अनुभव किसका, अनुभव तो एक्सपीरियंस होता है। क्यों लगा पर ये? उसको ये लगा कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा। हाँ एम्बिशन है उसके, ये एम्बिशन आदमी में होता है। उसको ये लग रहा है कि मतलब, अरे रूटीन देखो आप आश्रम का, उठ के प्रणाम कर लिया माता जी को, फिर चुपचाप कोई किचन में चले गए होंगे, डाइनिंग हॉल में चले होंगे, जो भी रूटीन तो रूटीन है ना। फिर उसको ये लगता है वहां नजदीक ही रमणाश्रम है कि यार हम तो सेल्फ से रियलाइज करके आ गए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, या मतलब मैं कर क्या रहा हूं। मां श्री अरविंद यूं तो भौतिक रूप से श्री अरविंद तो मिलते नहीं, साल में 4 बार दिखते हैं। खाली हमारी नोटबुक है वो जाती है, उस पे उत्तर लिख के आ जाते हैं। ये रूटीन आप कितने दिन फॉलो कर सकते हो, भले वहां श्री अरविंद और माँ दोनों मौजूद हैं, आप कर सकते हो क्या? वही रूटीन, वहां किचन में चले गए, खाना बना लिया, आ गए। सिंसियर हो तो 2-4 एक्टिविटी और पकड़ ली। आदमी कहता है यार इसके लिए आए हैं क्या, क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड तो याद रहता ही है। आप जिस भी वेल टू डू बैकग्राउंड से हो तो ज्यादा परेशान हो, या जिस भी बैकग्राउंड से आप हो, आप में एम्बिशन होता ही होता है, क्योंकि वाइटल के बने हैं हम। कौन व्यक्ति है जिसके एम्बिशन नहीं होता, जिसका अपना परिवार से संबंध नहीं है, जिसका अपना कोई पहले इंस्टीट्यूशन रहा हो, उसका क्या रहा, उन लोगों का क्या रहा, आप कोई संस्था के अंदर पहले थे, उससे कनेक्शन में, और धीरे 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 आपके लिए वो पुरानी वाली संस्था या चीज है वो तेजाब का काम करती है, आपको वहां आपके पांव उखाड़ने का काम वो करती है। महत्वाकांक्षा कैसे नहीं रहेगी। और आज तो इतने साधन है फोन के और के। पहले तो चलो सूचना तार से आती थी या चिट्ठी लिखी तो आई तब आई, कितनी चिट्ठी लिख सकते हो, कितनी लिख सकते हो। सूचना के जो साधन है, टेलीफोन भी उस समय जब जब श्री अरबिंदो है उस समय तो टेलीफोन भी कितना था। अब आप पकड़े ना धीरे धीरे, इस ये प्रश्न करके ही आप आगे चल सकते हो। आप कितना आगे रीडिंग कर सकते हो इस तरीके से देख लो आप। अकेले में आदमी इतना कर भी नहीं सकता, आगे वो तो पढ़ पढ़ के गुजर जाएगा भी आपकी। ठीक है, और तो क्या करो, जब तक चर्चा नहीं करो इतनी, ये एक एक लेटर को इस तरीके से डील करना पूरे साहित्य को आपके लिए खोल, नजरिया चेंज कर देगा। आप अब इंडिपेंडेंटली पढ़ोगे तो आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका माइंड के अंदर वो कॉन्वोल्यूशन इस तरीके के बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। आप देखोगे बिना एम्बिशन ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि मेरे अंदर वाइडनेस नहीं है, क्योंकि अनन्यता को वो वाइडनेस नहीं मान रहा। ये कोई काम हुआ क्या यहाँ, मैं कर क्या रहा हूं, मेरी वर्थ क्या है एक्चुअल में। लगता है कोई अच्छा पैसे वाला आदमी जगत की बातें बताएगा, लच्छेदार बातें करेगा, अरे इसको तो पता है जगत की स्थितियों का, हमको तो पता ही नहीं है। हमको तो माता जी ने कह दिया बस, हम तो यहाँ बर्तन साफ कर रहे हैं, हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, हमने तो यहाँ का
बस अड्डा ही नहीं देखा। हम तो आए थे, ओ दूसरा भी आके कहता देखो कितने संकीर्ण हो आप, क्योंकि आपके अंदर एक चीज दबी पड़ी थी, किसी का आगमन और उसका ये कहना, आप तो एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, तो आपके ये हो जाएगी यार वाइडनेस तो होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस चीज की कीमत नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है। अगर साइकिक मोमेंट होता, वो कहता है बेवकूफ, इससे ऊंचा कल्याण नहीं है, तेरे को तो पता ही नहीं ना। इसलिए साइकिक तुरंत ये कहता है कि मेरे को तो जो मिलना है सो मिल रहा है। साइकिक नहीं है इसलिए उसके ये रोग आ गया, कहीं से तो आया होगा ये रोग, ऑलरेडी दबा रहता है इसके जर्म्स तो। एम्बिशन के कारण उठती है ये चीज, डाउट उठता है अपने आप से कंसर्न के कारण। इसके अलावा ये मूवमेंट उठ सकते ही नहीं, इसी से जूझता आदमी। गुरु की अनन्य यदि आज्ञा मानते हो और अनुशासन का पालन करते हो तो इसी भाग को काटते हो आप तुरंत ही, और यही व्यक्ति नहीं कर पाता। एक्टिविटीज कर लेगा, खूब काम कर लेगा, ये नहीं काटेगा। और वही आप, चाहे आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, गुरुजी आप कहोगे मैं तो उस एक अक्षर से पालन करूंगा, तो इस ग्रंथि को काट के यूं आपके अहम की ग्रंथि को, आपकी महत्वाकांक्षा को, ये मूल चीजें हैं जीवन की जो साधना में व्यक्ति काम को मान लेता है, वाइडनेस। दूसरा भी कहेगा वाह ये तो बहुत प्रयास कर रहा है। अगर श्री अरविंद ये बात नहीं कहे, कितना कंफ्यूज जीवन है। आप ये देखो इस लेटर के माध्यम से क्या नजर आ रहा है। आप तो कहोगे ठीक कह रहा है बेचारा ये, आजकल ये अखबार भी पढ़ना इसने शुरू कर दिया, न्यूज भी अब लोगों से मिलता भी है, उनसे चर्चा पर। नहीं तो आश्रम में आदमी क्या कहता है, यार तुम संकीर्ण हो, तुमको जियो पॉलिटिक्स का नहीं पता, तुमको इसका नहीं पता, तुमको उसको, तुम बातें ही करना नहीं जानते, तुम छोटे से अपने जगत के अंदर, तुमको पता नहीं जगत में क्या क्या तो खाने के तरीके हैं, तेरे को टेबल मैनर्स नहीं है। तू कभी 5 स्टार होटल में गया है क्या? नहीं यार नहीं गए, मैं तो खाली आश्रम डाइनिंग हॉल का ही खाया, और माँ का ध्यान करते करते ही खाया। अरे तेरे को रस ही नहीं है 5 स्टार के क्या एटिकेट्स है तेरे को पता है। व्यक्ति को भी लगे अरे वाह यार, अगर उसके अंदर ये चीज दबी हुई है तो कौन व्यक्ति है जिसके दबी हुई नहीं है, उसको चांस मिल जाएगा। उसको कैसे नहीं चांस मिल जाएगा? आप 15 दिन तो इस अनुशासन को फॉलो कर सकते हो क्या? 15 दिन आश्रम का अनुशासन, मां श्री अरविंद वहां पंखा तक की व्यवस्था नहीं। एक साधक को उन्होंने उस समय मान लो कोई कूलर या एसी या कोई व्यवस्था लगवा दी, आज सबके पास मान लो है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर वो वाली चीज एक्स्ट्रा यदि उसको दे दी जाती है तो एक साधक के दूसरे के मन में नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, ये कुड़ता रहेगा बेचारा। वहां लड़ाई यही है। श्री अरविंद ने अपनी बिल्डिंग में मेरे को रखा, ये नजदीक वाली में रखा, वहां चर्चा का विषय है, अब भी यही है क्लोजली। प्रोस्पेरिटी से चद्दर ले लेंगे, चद्दर लेके मेरे नाम की आपने ले ली, लेके बेच दी, उससे फिर बाद में आपको पसंद है वो चीज ले ली, आश्रम की चीज बेच दी बस। प्रोस्पेरिटी में जो मिलती है साधकों को, वो साधक कह रहा मेरे को नहीं चाहिए, उसके नाम का कोई दूसरा साधक उसके साथ रह रहा है, वो ले आया, लाके बेच दी। ये चीजें दबी हुई हैं, मानव प्रकृति की यही गांठें आपको नहीं जाने देती। बड़ी कोई चीज नहीं है पर ये गांठ है ये, और इसी के अंदर व्यक्ति को, उन गांठों को ये लगता है इसको मत छेड़ो। तो भगवान कृष्ण का वो जो रूपक है, गोपियों को कह रहे ऊपर हाथ करके आओ, तो दूसरे को लगती है अश्लीलता, और एक मिस्टिक है उसको लगता है क्या अंतरंग अनुभव है, भगवान कोई दुराव छिपाव नहीं छोड़ता। क्या हम ये कर सकते हैं? ये है मुख्य बात। तो आपके साथ आपकी साइकोलॉजी लगी हुई है सारे समय, और वो आपके कान में कुलबुलाती रहती है। मैं तो नजदीक से देख रहा हूं भाई ये चीज, सारे समय इनसिंसियरिटी कुलबुलाती है, आपको ये इंप्रेशन है कि आप सिंसियर हो। ठीक है, जीवन है आपका, जब मां श्री अरविंद के सामने वो नहीं छोड़ रहे तो आप इंडिपेंडेंटली कर लोगे बिना आज्ञा पालन के। ये है समस्या। आगे हियर
तो ये वाइडनेस नहीं होगी, इससे तो कंफ्यूजन फैल जाएगा। आपको जो कहा वो करो ना यार। अदरवाइज व्यक्ति के क्या रहता है, मेरे को तो यहाँ खेती का काम दे रखा, इसको मैनेजमेंट का काम दे दिया। ये 20 जनों से मिलता है, 20 जने आते हैं, जो मैनेजमेंट वाला व्यक्ति है उसके लिए कुछ लेके भी आते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में हो, ऑटोमेटिकली वहां कोई आपके लिए मान लो कोई गिफ्ट लिया है, पर यदि मैनेजमेंट वाला व्यक्ति पर्सनल लेवल के ऊपर इसको ले रहा है, उसने अपनी साधना का सत्यानाश कर लिया। आप जिस काम को कर रहे हो, अब मैं खेत के ऊपर हूं, अब सहज रूप से हाँ, मेरे को फ्रेश अगर कोई चीज खाने को मिल रही है, मेरे को मिल रही है भाई। आज अगर मैं वहां हूं, जो ब्यूटी जो फ्रेश एयर मेरे को मिल रही है मेरे काम के अंदर। अब पब्लिकेशन का काम है, उसमें आंखों में स्ट्रेन है तो है, मतलब उसमें क्या करें, जो आपकी वर्क की कंडीशंस हैं वो हैं। तो ये महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति के एक्सपेक्टेशंस, बुदबुदाहट, ये छिपी रहती है। हियर इन द लोअर नेचर देयर आर मेनी थिंग्स, बट दे आर इन ए स्टेट ऑफ डिसहार्मनी, सो टू फॉलो देम ऑल टुगेदर मीन्स डिसहार्मनी, कंफ्यूजन, वांट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वांट मतलब कमी का अभाव, वांट मतलब अभाव, सुव्यवस्था का अभाव आ जाएगा यदि आपके अंदर ये वाली चीजें हैं, फाइट, और आपके अंतर्विरोध और कलह हो जाएगी। ये ही कलह साफ साफ नजर आ रहा है। कुछ व्यक्तियों में सहज रूप से प्रकृति में ये होता है कि आप कह दो और हम मान लेते हैं, ये जाते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा सूत्र है, ये इजी नहीं है, पर ये अब ये क्या कैसे करें। इन द हायर सुप्रामेंटल नेचर देयर इज ए ग्रेटर वाइडनेस and much more is there than in the lower nature, but all is harmony, organization, peace. Follow therefore the one way that leads to the higher supramental nature, और वो हमारे माध्यम से करो, इंडिपेंडेंटली नहीं। Do not be impatient, because full knowledge does not come to you at once. Impatient मत हो जा कि सारा ज्ञान एक साथ तेरे पास नहीं आ रहा। In quietude of mind keep the contact, और ये कोई ये समझा कैसे सकते हो, इम्पेशेंट कैसे नहीं हो जाएगा? क्या ये नहीं उठेगी ये बात कि भाई माँ का काम तो कर नहीं रहे अपन? ये सच्चे रूप से भी उठ सकती है, और इसके बीच में एक बहुत बहुत फाइन लाइन है कि आप अपने आप से संतुष्ट होके बैठ गए तो आगे नहीं जा रहे। कौन सी चीज है जो इस फाइन लाइन को डिफाइन करती है? ये तो सही है, ये इंटेंसिटी सही है, जो आप जिसको इंटेंसिटी कहते हो, और ये वाली जो माँ अपनी प्रेयर में कह रही है, अपन ने उसको सिलेक्शन में भी लिया है कि ये इंटेंसिटी आपके और मेरे बीच में पर्दे का काम करती है, जिसको आप इंटेंसिटी कहते हो। मेरे को माँ मिल जाए, आप थोड़ा डीप जाके ये देखो, एक दूसरी चीज है साइकिक चेतना कहते, उसमें इंटेंसिटी तो है, पर ये वाली फीवरिशनेस नहीं है। इंटेंसिटी में और फीवरिशनेस में एक अलग अलग चीज है। भजन गा रहे हो, खूब इंटेंस हो आप, पर मां से पीस में भी हो, इंटेंसिटी में पीस नहीं हो, ये नहीं है। और एक आपके फीवरिशनेस है, जैसे बुखार चढ़ रही है, उसमें कोई एज सच इंटेंसिटी नहीं है, वो तो एजिटेशन है। ये अलग अलग मूवमेंट्स हैं आपके बीइंग के। डू नॉट बी impatient, because full knowledge does not come to you at once. In quietude of mind keep the contact, let the true light and force work, and with time all knowledge will come and the truth will grow in you. ये आश्वासन है। ठीक है, कितनी बातें इसके अंदर से निकल के आई है, ये तो साधना की कितनी चीजें इसके अंदर है। अनिल जी? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, ये साहित्य यदि ऐसे नहीं करो तो और मतलब फिर तो पढ़ जाओ बस। हाँ, वो तो उसे डिग ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो, तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। इंटेंशन क्या है उनका, क्या कहना चाह रहे हैं। 2 मिनट दो, फिर अपन फिर से रिज्यूम करते हैं अपनी नेक्स्ट